God never fail means what? परमेश्वर कभी असफल नहीं होते, इसका मतलब क्या है? मतलब आज इसका मतलब ये है कि किसी भी क्षेत्र में, किसी भी फील्ड में परमेश्वर ने हमारी जो योजना रखी हुई है वो हर उसमें पूरी होगी अगर हम प्रभु बने रहते हैं तो। God never fail. God is never fail. So that is not today my topic, and God never fail. आज पास्टर का ये टॉपिक है कि परमेश्वर कभी असफल मतलब फेल नहीं होता है। So we all respect. तो हम सब पहले प्रार्थना Ask the करें Lord, you bless my life. और परमेश्वर से बोले कि प्रभु मेरे जीवन को You आशीष दे never fail. और आप कभी हार And नहीं this जाएंगे। year also you're not और going to ये fail. साल भी परमेश्वर आप हारेंगे नहीं, लेकिन आप हमें बढ़ाएंगे। So you pray like this. आप प्रार्थना Lord, करें all your promises and you always कि be. परमेश्वर आपके जो वायदे हैं जो आपने किए वो पूरे हो You गए। ask the Lord, Lord, that this is the first Friday and throughout the year use me and bless me. आप बोले परमेश्वर से कि प्रभु आज इस शुक्रवार को 2024 का पहला शुक्रवार है और आप मेरा इस्तेमाल करें कि पूरे साल में मैं बहुत आयत का फल लाने वाला बनूं। Thank you, Father, Almighty God, Lord Jesus. We worship you, Father. We adore you, Lord Jehovah. You are the great God. You are the mighty God. You are the marvelous God. You are the wonderful God. You are the powerful God. Thank you, Jesus. Thank you, Jehovah. Thank you, Almighty God. Thank you, King of Kings and Lord of Lords. Father, now we are in your presence, Lord Jesus. I completely surrender to you, Father. You speak to me, Lord Jesus. You are the great God and mighty God. And Father, today, thank you so much that I could able to stand in your altar the first day. Thank you, Lord Jehovah. By your grace, I am here. By your power, I am here. By your presence, I am here. By your anointing, I am here. Thank you, thank you, thank you, thank you, thank you. All the glory and honor belongs to you, Father. If you are not here, I will never be here. Thank you for all your faithfulness. You never fail. The day that I was born, the day that I was coming to this house, the day that I am Father alive, you never failed in my life. My parent failed, my friend failed, my loved one failed, but you never failed, Lord Jesus. I thank you, Jesus, Lord, and I worship you, Father. And today as I speak, more than I prepare, more than I read, Lord Jehovah, you minister to me, Lord. And whatever I come out from my mouth, speak to the heart of the people. Bless the life of the people. And today they will receive something and they will go back. Lord Jesus, and I commit that and bless me, our Father Mamta also, Lord Jesus. The God who are using me, use her. So that we both will go one heart, one mind, one spirit, one love. Thank you, Jesus, Lord. And I worship you, Father, mighty God. And I praise you, Lord Jesus. And thank you, Jesus. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Manish, take Bible. We should take Bible. So the Bible says that today our topic is that you can know. Today our topic is that God never fail. तो आज की जो टॉपिक है आप लिख सकते हैं कि परमेश्वर कभी असफल नहीं होता। So God never fail. प्रभु कभी नहीं हारता है। That means इसका मतलब है God never fail. कि परमेश्वर सच में कभी नहीं असफल See, many a time we are failed. बहुत बार हम असफल हो जाते See, हैं। fail means that you are promised that 2020-24 I will do this and that. 2023 also we do so many things. फेल का मतलब है कि मतलब ये नहीं कि परमेश्वर तो कभी असफल नहीं होता है, लेकिन जो हम वायदे करते हैं कि परमेश्वर हम प्रॉमिस करते हैं कि हम 2023 में 2024 में ये काम करेंगे आपके लिए, लेकिन बहुत बार हम असफल हो जाते हैं और हम मतलब उन सब चीजों के बारे में सोच भी नहीं पाते जो हमने प्रभु को वायदा किया था। Amen. Okay, everyone look this side. So now, what is that? 2023 we failed many a time. 2023 में बहुत बार असफल भी हुए हैं। We promise. हमने वादा भी किया। प्रभु में भी इंसान लोग कभी हम promise करता था लेकिन हम fail हो रहा था. So sometimes our parents fail. बहुत बार हमारे माता पिता भी My parents many times they have failed in my life. पास्टर कह रहे कि मेरे माँ बाप भी कई बार मेरे जीवन में असफल हुए हैं। Or our church member many times fail our life. हमारे चर्च के लोग भी कई बार असफल हुए हमारे जीवन में खुद के Or जीवन many में। leaders also fail in our बहुत life. सारे अगुवे भी फेल Or हुए we हैं। also fail to members. हम भी बहुत बार लोगों के प्रति फेल हुए हैं। I also fail to many people that I promised that I will do like this, I work for you like this, I will give you like this. I also fail. पास्टर कह रही कि मैं भी फेल हुई हूँ। बहुत सारे लोगों को मैंने भी वादा किया मैं आपके लिए ये करूंगी ये सारी चीजें, लेकिन नहीं हो पाया। So I also disappointed people. तो पास्टर कह रही कि मैंने भी बहुत सारे लोगों को निराश किया है। But when we look in Bible, लेकिन जब हम बाइबल में देखते हैं God never fail. प्रभु कभी नहीं फेल होता है। And God never fail. वो कभी नहीं फेल Even होता your है। husband, your wife, your children, your best friend, your boyfriend, girlfriend, they will fail. यहाँ तक कि आपके माँ बाप, आपके पति, आपके बच्चे, हर कोई फेल हो सकता है, लेकिन प्रभु नहीं होता। And your pastor are fail. आपके पास्टर भी फेल हो But सकते God never हैं, fail. लेकिन प्रभु कभी नहीं असफल So हो सकता। that God वो परमेश्वर is going to lead this year वो again. इस साल को भी हमारी अगुवाई करेगा And all the days of our life. और हमारे जीवन के हर एक दिन में भी। So whatever God say, तो जो भी कुछ प्रभु कहे, why
हैं, tomorrow you didn't have. कल हमारे पास नहीं And you है, say that I will give you 1,000 tomorrow. और कल हम उसको बोल देंगे कल हम आपको 1,000 रुपए दे देंगे। Then you have situation come, you need to use that money. लेकिन आपकी परिस्थिति इतनी खराब हो जाएगी कि उन पैसों को आप खुद ही यूज कर लेंगे। And then the person that you promised you failed to give. लेकिन जिस इंसान को आपने वादे किया आप उसे नहीं दे पाए। And in your life also, आपके जीवन में भी ऐसे people will होता say, है। I will do for you. जैसे लोग भी कहते हैं कि ये मैं आपके लिए ये चीज करूंगा, Preeti, I will do like this for you. कि प्रीति दीदी मैं आपके लिए ये करूंगा, Or Sister Surika, I will do like for you. कि Like सिस्टर this. सुरेखा मैं आपके लिए ये चीज करूंगा। So many people make a covenant with you. लोग वाचा भी बांधते हैं, So many people make a promise with बहुत you. सारे लोग वादा भी करते हैं, But when the time comes, लेकिन जब समय आता है they are fail. वो फेल हो जाते हैं, Then we disappointed. तब हम निराश हो जाते हैं। मैं को तो विश्वास नहीं करेगा, मेरा को ऐसे बात कर रहा था, मेरे को आपको जरूरी देंगे, आपको जरूरी पूरा करेंगे, ऐसे वादा कर रहा था, लेकिन फेल होगा। आज के दिन से मैं उनको विश्वास नहीं करता। तो हम विश्वास तोड़ते हैं, लेकिन गॉड नेवर, प्रभु हम लोग का लाइफ में विश्वास नहीं तोड़ता, प्रभु हम लोग का लाइफ में डिसअपॉइंटेड नहीं होता, प्रभु हम लोग का लाइफ में फेल नहीं होता। हम प्रभु के लिए फेल होते हैं, लेकिन प्रभु हम लोग का लाइफ में फेल नहीं होता। हम प्रभु के लिए फेल होते हैं, इसके लिए प्रभु का आशीष पूरा नहीं मिल पाया, क्योंकि फॉर एग्जाम्पल आज का दिन वो लोग के लिए प्रभु आशीष दिया, तो सब लोग लेके नहीं आया, तो फेल हो गया वो लोग के लिए। प्रभु तो फेल नहीं था, लेकिन हम फेल होकर रिसीव करने के लिए, तो अलग अलग तरफ से हम भी ऐसा होते हैं। So that but God is never fail. लेकिन परमेश्वर नहीं कभी फेल होता। That's why God say that God is not a man इसलिए परमेश्वर क्योंकि इंसान ही नहीं है, वो तो परमेश्वर that है he should lie. और वो झूठ भी नहीं बोलते, God never lie. लेकिन प्रभु झूठ नहीं The बोलते, Bible इंसान says बोलता है। that Satan is the father of lie. बाइबल बताती है कि जो शैतान है वो झूठ का पिता है, So lie come from Satan. तो जो झूठ है वो शैतान से ही They आता make है, a promise to you. कि वो हमारे साथ वाचा They say बांधेगा I will be always with you. कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। See, even our friend, यहाँ तक कि हमारे दोस्त भी, मैं कोई इंसान को नहीं बताएंगे, हाँ हम शेयर करता था सारे इनर थिंग, हम लोग का सारे प्राइवेट लाइफ शेयर करता था। उस इंसान हम विश्वास करता था क्या है वो दूसरों को नहीं बताएंगे, और हम लोग परिवार को नहीं बताएंगे, एंड हम विश्वास करते हैं, लेकिन बाद में इंसान ना अंदर से नहीं डाल सकता, हाँ नहीं बताएंगे, बिल्कुल नहीं बताएंगे, लेकिन दूसरा को बंधन के पास आएंगे, मालूम है उन्होंने मेरा को नहीं से बताया, आप कोई इंसान को मत बताना, मैं आपको बता रहा हूँ, ओ वाला भी दूसरा को बताएंगे, ओ वाला भी दूसरा को बताएंगे, ओ वाला भी दूसरा को बताएंगे, लास्ट राउंड करके हम लोग को पास पहुंचा, सब मालूम हो गया। लेकिन गॉड इज नेवर डू लाइक दैट। लेकिन परमेश्वर ऐसा नहीं करता कभी। God, whatever you say, लेकिन जो आप परमेश्वर से बोलते हो, see, you never see God spreading our news. आप कभी ये नहीं देखोगे कि यीशु मसीह या फिर परमेश्वर हमारे न्यूज़ को और जगह फैलाता है। God never say, oh, आप पाप हो गया, आप sin, आप सेक कर दिया, आप झूठ बोल दिया, आप क्या है स्टील कर दिया, आप दूसरा को धोखा दिया, आप कलह कर दिया, आपका दिल इतना क्या था, बिटरनेस था, सारे प्रभु दिखते हैं, लेकिन इंसान को नहीं बताता। तो प्रभु बताएंगे तो हमको कितना होगा, सिर्फ प्रभु हम लोग लाइफ में सब मालूम है, तो प्रभु सब लोग को बताएंगे तो हम तो हाइडिंग करने का जगह नहीं है। So because प्रभु मालूम है हम लोग का दिल में, but God is always keep secret. परमेश्वर हर चीज को जो है ना हमारे सीक्रेट में तो छुपा के रखता है, And God never expose. और कभी किसी को बताता भी नहीं है। But God did expose our problem लेकिन परमेश्वर अपने पास में नहीं उस चीज को हमारे सॉल्यूशन or our sin. और हमारे पापों को Instead of expose, जो अगर वो बाहर निकाले, instead of he is exposing, he didn't expose, वो नहीं किसी के आगे मतलब खोलते नहीं है इस चीज को, but he clean. लेकिन वो साफ करते हैं। God clean our dirtiness. हमारी गंदगी को परमेश्वर साफ करता है, But people will not clean your dirtiness. लेकिन लोग आपकी गंदगी को साफ करने के बजाय लोगों को बताएंगे। People will not clean your dirtiness, लोग आपकी गंदगी को साफ नहीं but they करेंगे, will more putting. लेकिन और डालेंगे। आप इंसान को ये रोज है, एक रोज को बताएंगे, दूसरा दोस्त रोज को बताएंगे, तो 2 हो गया, 3 हो गया, ट्रिपल हो गया, तो हम एक बच्चा ना बोल फैलाता है, इतना कहानी बना के, इतना क्या अपना खुद से बना के हम लोग को लाइफ में बड़ा होते हैं। So that is how, but God never do that. लोग इस तरीके से करते हैं, लेकिन प्रभु नहीं But करते। Satan is like that. लेकिन शैतान तो ऐसे ही You है। tell the yellow, this is a yellow flower. लेकिन अगर आप उसको बोलोगे कि ये पीला कलर का फूल है, Satan will tell that this is a red. लेकिन शैतान बोलेगा नहीं ये लाल है, They will not tell the sachai. वो सच्चाई नहीं बोलेगा। They will tell that this is yellow. वो बोलेगा कि हम बोलेंगे कि ये पीला है, They will say red. लेकिन वो कहेगा कि लाल है। Then they will tell the news line. और वो
सबको यही बताएगा, but they will never tell the yellow flower. लेकिन वो सच ही नहीं बोलेगा कि हाँ ये पीला ही है। So that is how the Satan works. ऐसे ही शैतान का काम But होता God is not a man. है। लेकिन परमेश्वर तो इंसान नहीं He है, is not limited. वो कोई सीमित भी नहीं है, He is the so much unlimited वो God. अनलिमिटेड है। मतलब वो इतना महान है कि Full पूरे of ब्रह्मांड में wisdom. नहीं आता, पूरे बुद्धि से Full भरा of हुआ है, knowledge. पूरा समझ Full of रखता है, power. बहुत सामर्थ है। Even today you may be spend crore of money, आज यहाँ तक कि अगर आप करोड़ों रुपए खर्च कर लो, but God account for you लेकिन परमेश्वर का खाता आपके लिए never limited, कभी भी सीमित नहीं होगा, never khatam. कभी खत्म नहीं होगा। He is like that. वो ऐसा ही है, He is the overflow. He is the fountain of life. वो हमारे जीवन में बहता रहता है इस तरीके से। He is the आशीष से। fountain of the ocean never dry. कभी भी देखो कि समुद्र सूखता नहीं है, Same thing, God never dry. इसी तरीके से परमेश्वर Whether कभी भी सूखता sun नहीं है। heat, चाहे वो धूप whether हो, cold, चाहे ठंड हो, whether spring, चाहे वो स्प्रिंग whether हो, autumn, चाहे वो ठंड हो, God's greatness is always the लेकिन same. परमेश्वर की महानता वैसी ही बनी There is है। sometimes I say to God, इसलिए परमेश्वर को Lord, पास्टर you जी have बोलते हैं, bank account for me ये आपने मेरे लिए जो खाता खोला है all the days of my life. मेरे जीवन के सारे दिन में, And one day, 1 minute, I spend crore money also my bank account will never khali. कि आपने इतना भरा कि मैं एक दिन में 1 मिनट में चाहे करोड़ों रुपए खर्च कर दूं तो भी खत्म नहीं होगा। God never say that, oh, you this much you are using, your bank is khali. कि परमेश्वर कभी नहीं कहते कि तुम इस चीज को ज्यादा खर्च कर रहे हो खत्म हो जाएगा। God is never do like that. परमेश्वर ऐसा नहीं करता। Even not only your life, यहाँ तक कि आप अपने जीवन में भी, your generation to आपकी generation, पीढ़ी से पीढ़ी तक, your whole life, आपकी पूरी जिंदगी He is blessing like that. वो आशीष देता ही चला जाता है। So that is how God created. ऐसे ही परमेश्वर के काम है। Because that is why God is not a man. इसीलिए परमेश्वर इंसान नहीं Even है। our prime minister has limited. हमारे जो प्रधानमंत्री है वो भी Even इंसान है, our limited है। India government making a money हमारे भारत सरकार जो पैसा बनाता for है factory, और जो फैक्ट्री steel है, factory हो, जो iron factory हो, स्टील की है, लोहे की फैक्ट्रीज और है, gold factory चाहे हो, सोने की फैक्ट्रीज है, silver factory हो, चाहे वो चांदी की होती सारी है, चीज limitation वो होता है. सारी चीज सीमित है। So सारी चीज और डिमांड होता है तो उनको वो खत्म होता है. लेकिन गॉड को ऐसा नहीं होता. गॉड ने को इतना डिमांड करो, इतना सप्लाई करेंगे, इतना डिमांड करो, इतना सप्लाई करेंगे सारे दुनिया को, सारे नो एशिया, ऐसे मतलब हम सारे एशिया, अमेरिका, यूरोप, इन दुनिया में कितना व्हाट इज दैट इन ओके read I'll ask you, in this world how many continents? 7,000. Yes, and then how many like continent and how many we call like Asia then? Asia, Oh, Asia, four? Africa, Mm. Asia, Africa, Mm. Australia, Mm. North America, No. South America. Asia, America, Africa, and USA. This is the four corner of the world, and Europe. So Europe then all together. So we are not Australia then only Australia, but Asia then all we occupied by China, Malaysia, Singapore, and all we are India, all of मतलब पास्टर के कहने का मतलब है जो एशिया है इसमें बहुत सारे देश है, जैसे चाइना है, रशिया है, और मतलब और भी तरीके के जो इंडोनेशिया वगैरह सब आते हैं। So that is the things that. So God is not limited. तो इसलिए परमेश्वर सीमित नहीं है। Human being has limited to produce, हमें इंसान देने में बहुत सीमित है, and human being has limited to give. देने में बहुत ज्यादा सीमित है। That is why God never fails, इसीलिए परमेश्वर कभी नहीं असफल because He होता है। is not the God of limitation, क्योंकि वो सीमित रहने वाला परमेश्वर नहीं है। and the neither Son of Man, and that He should not repent. That is what it is found to as a number. हम देखेंगे गिनती की किताब, Book of Numbers. Let's start to number. You can bring that one here. Books of number. Everyone read together. The number is the शुरू का book से. Numbers chapter 23 verse 19. गिनती की किताब पेज नंबर 194 194। I will read here. God is not a man that he should neither lie, neither son of man that should repent. Hath he said and he shall not do it, or hath spoken and shall not be not make it good. हम पढ़ते हैं गिनती की किताब 23वां अध्याय उसका 19वां वचन पढ़ते हैं। ईश्वर मनुष्य नहीं कि झूठ बोले, और ना वह आदमी है कि अपनी इच्छा बदले। क्या जो कुछ उसने कहा उसे ना करे? क्या वह वचन देकर उसे पूरा ना करे? So number 23. गिनती की किताब 23वां अध्याय Verse 19. उसका 19वां वचन। By hearted.
आप इसे पढ़ सकते for हो this year. इस साल के See, the Bible says God is not a man. इसलिए बाइबल बताती है कि वो कोई मनुष्य नहीं है, He will not lie. वो झूठ नहीं बोलता, God is not the son of man. वो कोई आदमी का कोई इंसान मतलब वो नहीं है, बेटा नहीं है, And God cannot repent. और वो कोई पछतावा करने वाला वैसा मतलब व्यक्ति नहीं है, Because God never sinned. क्योंकि वो कभी पाप ही नहीं करता, Because God doesn't know sin. क्योंकि वो पाप जानता ही नहीं God है, is good all the time. क्योंकि परमेश्वर हमेशा भला है, Always Satan is the sin. केवल शैतान ही पाप So करता है। if there is no sin, अगर आप पाप नहीं करोगे then how they तो repent? आप कैसे पछतावा करोगे? So God cannot nothing to repent. इसलिए परमेश्वर के पास पछतावा करने के लिए Because कुछ we have नहीं no है, sin. क्योंकि उसने पाप ही नहीं किया। So we have committing sin, that's why we repent. हम पाप करते हैं इसलिए हम पछतावा करते हैं, We have failed. हम फेल हो जाते That's हैं why we repent. इसलिए हम पछतावा करते We हैं, fail our promise. हम अपने वादा में फेल हो जाते We हैं, fail to do what God wants us to do. जो परमेश्वर हमसे चाहता है हम कर नहीं पाते, इसके लिए हम वो पछतावा करते हैं। So there is a human being need to repent. इसीलिए जो इंसान उनको पछतावा करने की जरूरत But होती God है, has nothing to repent. लेकिन परमेश्वर के पास ऐसा कुछ नहीं कि वो Because God पछतावा never करे, failed. क्योंकि कभी वो He असफल never नहीं होता, committing sin. वो कभी पाप नहीं He करता, never limited. वो कभी सीमित ही And नहीं he है, never lied. और ना वो झूठ He बोलता है, never do evil. और ना वो बुरा करता है, That is why he has nothing to repent. इसलिए उसके पास कुछ है ही नहीं कि वो पछतावा करे। That God is our वो God. परमेश्वर हमारा So परमेश्वर, that God will lead this 2024 again. वही परमेश्वर ये 2024 में हमारी अगुवाई So करेगा। trust in that God, that God never fail in your life, personal life, family life, church life. He will never fail. इसीलिए हम उनसे प्रार्थना करें कि परमेश्वर 2024 में आप हमारी अगुवाई करें, क्योंकि आप कभी भी फेल नहीं होते, आप हमारे परिवार में हमारी अगुवाई करें। Sometimes I fail to do. कई बार पास्टर करें कि मैं भी फेल हो जाती God कुछ करने never में, fail. लेकिन प्रभु कभी असफल And नहीं even in the होता। ministry, हमारी मतलब पास्टर करें मेरी सेवकाई में भी the day I entered to the ministry, कि जब पास्टर इस मिनिस्ट्री में आई, many people fail. बहुत सारे लोग असफल हो गए And many people give up. और बहुत सारे लोगों ने छोड़ दिया, Many people disappointed. बहुत सारे लोगों ने निराश कर But दिया। I see God. लेकिन जब पास्टर ने परमेश्वर को देखा, God never fail. लेकिन वो कभी God फेल never नहीं होते, disappointed. ना वो कभी निराश करते, God never, leave. ना वो हमें छोड़ने वाले। Many people fail in our life, they leave. बहुत सारे लोग फेल हो जाते हैं और छोड़ के चले जाते हैं। You also fail in people's life. आप भी बहुत बार लोगों के जीवन में असफल हुए होंगे And then you left for that और person. आप उन्हें छोड़ दिए, Your trust has gone. आपका विश्वास चला गया। So now you say मैं विश्वास नहीं करेगा, तो वो लोग का लाइफ से निकलता है और दूसरा का लाइफ हम आते हैं। लेकिन प्रभु हम लोग का लाइफ ऐसा नहीं होगा। Whether हम करते हैं और नहीं करते, प्रभु हम लोग का हमेशा रहते हैं, हमेशा हम लोग का लाइफ में है, हमेशा हम लोग का परिवार में है, हमेशा हम लोग का चर्च में है। आइदर आप आए हो और नहीं आया, आप प्रभु का काम करते हो नहीं करते, प्रभु फेल नहीं होगा। वो का काम हम आया नहीं आया, प्रभु हमेशा इधर होते हैं। हम फेल हो जाएंगे, प्रभु ने दूसरा को उठा के लेके आएगा। आपका सीट में आप नहीं होंगे, प्रभु ने दूसरा को फिट करेंगे। मैं इसे सारे की दिख रहा शुरू से पहले बहुत लोग आप लोग जैसा था, बहुत फेयरफुल था, बहुत कमिटेड था, अभी कहाँ गया? तो ऐसे निकलता है, लेकिन प्रभु नहीं निकलता। दूसरा सब लोग फेल करके निकलते हैं और प्रभु ने दूसरा को उठाता है। और ऐसे तो मैं ऐसे लाइफ में ना, हम लोग लाइफ में भी कितना लोग आया, कितना लोग निकल गया। लास्ट ईयर बहुत लोग आया, हम पता नहीं इस साल में मिलेगा और नहीं मिलेगा। और हम लोग का विश्वास है प्रभु ने नया हम लोग का लाइफ में ऐसे आते हैं। So because God never fail. क्योंकि इसलिए ये होता है क्योंकि परमेश्वर कभी फेल नहीं होता। That is why today I talk about that God never fail. इसीलिए आज का जो विषय है कि परमेश्वर कभी असफल नहीं होता। So don't be discouraged. इसीलिए कभी निराश ना हो, Don't be disappointed. ना कभी निराश हो। Your trust will not go away from God. कभी भी आपका विश्वास जो है परमेश्वर से जाना नहीं चाहिए। But आप प्रभु से निकल जाएंगे तो आपका लाइफ मुश्किल हो जाएंगे। आप प्रभु से रिजेक्ट करेंगे तो आपका लाइफ कहाँ जाएंगे? कोई जगह कॉर्नर नहीं है हम लोग का हेल्प पाने के लिए। So that is why God never fail. And then also, what a comforter and confidence and blessed assurance to know that He can trust God with all your life. See, God is the one you can trust you. You can trust God all the days of your life. इसीलिए परमेश्वर का जो वचन कहता है कि आप परमेश्वर पे भरोसा रखें और परमेश्वर के आपके जीवन में जैसा आप विश्वास रखते हो कार्य करता है। God is the one that who can never fail you. वो एक ऐसा परमेश्वर है कि कभी भी ना हमें छोड़ता है ना कभी असफल होता है। So we should confident in तो God. हमें भी कॉन्फिडेंट होना चाहिए And we should trust in और God. हमारा विश्वास होना But we चाहिए। should not confident in human beings. लेकिन हमें इंसानों पे विश्वास We नहीं should करना not चाहिए, confident in people. ना उन पे हमें कॉन्फिडेंट We should रखना not चाहिए, confident in pastor. ना
योग्य so है, that those people will never disappoint you. तब वो लोग जो परमेश्वर भेजेगा वो कभी आपको निराश नहीं करेंगे। But when we left God is the second, people first, then those kind of people will bring bad people. लेकिन जब आप लोगों को पहला हिस्सा देंगे अपने जीवन में और परमेश्वर को दूसरे हिस्से पे रखोगे तभी वो आपको निराश करेंगे ही करेंगे। But when we trust God, लेकिन जब आप परमेश्वर में भरोसा रखते God हैं will make you to be a pastor, to be trusting person. तब परमेश्वर मतलब ऐसा पास्टर देगा या फिर आपको ऐसा लोग देगा जो आपको कभी निराश ना करे। And when you are doing, and then when you confident in God, और जब आपको परमेश्वर में कॉन्फिडेंट होगा God will give you in your life confident people. तभी परमेश्वर ऐसे लोगों को लाएगा कि जो आपके मतलब कॉन्फिडेंट वाला कि कभी आपको And निराश God ना will give you in your life that who will never cheat you. और ऐसे लोगों को लाएगा जो कभी आपको धोखा भी ना दे। When we are not failing God, जब हम परमेश्वर में कभी फेल नहीं होते God will give you people in your life not to fail. ऐसे लोगों को भेजेगा कि कभी असफल ना हो पाए And God will give you in your life not to fail. और ऐसे लोगों को देगा कि वो कभी फेल ना हो। Amen? Amen. It's good that I know Hindi, okay? So when yes, so that is the things that how God is doing great things. इसीलिए परमेश्वर महान कार्य करता है। Amen? आमीन। And then also let us start to 1 Peter. हम खोलेंगे पहला पत्रस 1 Peter chapter 2 verse 6. That 1 Peter chapter 2 verse 6 say that he never fail when you trust in him. Lord, you shall not be comforted. That means you will never disgrace or put to blast on your trusting in God. See, when you're trusting in God, God will never fail you, and God will never put into a shame. God will never disappoint you. Okay, read पहला it. पत्रस Read you read. 1 Peter chapter 2 verse 6. चैप्टर 2 वर्स 6 Hmm. पेज नंबर 324 Hmm. और वचन 6। इस कारण पवित्र शास्त्र में भी आया है, देखो मैं सिय्योन में कोने के सिरे का चुना हुआ और बहुमूल्य पत्थर धरता हूँ, और जो कोई उस पर विश्वास करेगा वह किसी रीति से लज्जित नहीं होगा। Amen. See, when you trust in God, जब हम परमेश्वर पे विश्वास रखते in हैं His Bible say He will never put disgrace. Mean He will never put into a shame. मतलब इंग्लिश बाइबल ऐसे बताती है कि जब हम परमेश्वर पे विश्वास रखते हैं तो कभी वो हमें शर्मिंदगी में नहीं जाने देते। But when you trust men, लेकिन जब हम इंसानों पे भरोसा रखते हैं then men will disappoint you. वो आपको पक्का निराश करेगा। Then men will put public shame with you. वो आपको पब्लिक के लिए शर्मिंदगी महसूस कराएगा। But when you trust in God, लेकिन जब आप परमेश्वर पे विश्वास करते see, हैं when we trust God, जब आप परमेश्वर पे विश्वास करते God हैं never put a shame public, कभी भी वो आपको लोगों के आगे शर्मिंदगी but महसूस He's नहीं over कराएगा। us. लेकिन वो हमें ढकेगा। Some people will say आप इससे हो, ये आप तो गंदा है, आप तो prostitute है, आप तो झूठ बोलते हैं। बहुत लोग हम लोग का लाइफ में ऐसे डिसअपॉइंटेड होते हैं, और हम लोग का लाइफ में ऐसे डिसग्रेस होते हैं। लेकिन प्रभु मालूम है, यस हम कभी कभी ऐसा होता है, लेकिन प्रभु हम लोग का लाइफ ऐसा नहीं होता। इस चीज आते ना प्रभु हम लोग का ओवर करते हैं। So that because He is never allow you to put into a shame. और वो ऐसा कभी भी अलाउ भी नहीं करेंगे कि आपको शर्मिंदगी का सामना करना पड़े। So that is why we need to trust God. इसीलिए हमें परमेश्वर पे भरोसा करना चाहिए। That God only can put you into higher and higher. वही परमेश्वर आपको ऊंचाई पे ऊंचाई ले जाएगा। But people is that the more you talented, लेकिन जैसे आपके अंदर ज्यादा टैलेंटेड है the more you are gifted. और ज्यादा आपके पास तोहफे है परमेश्वर के, People will say, oh, that person is very great. तभी लोग आपकी तारीफ करेंगे कि हाँ ये Oh, इंसान Mamta, बहुत you're अच्छा है। doing great work in what is that interpretation. कि तब लोग आपको कहेंगे अच्छा आपके अंदर ये गुण है ना इसलिए आप इतना अच्छा कर पाते हो। But inside, लेकिन अंदर से people are jealous. बहुत जलन होता है। क्यों ये करते हैं? Why not? Maybe कर सकते हैं। क्यों pastor को that time with that? But God never do like that. So when you become great, लेकिन जब हम महान बनते हैं God is happy. परमेश्वर खुश होता है। मेरा सन मेरा डॉटर इस वजह से मैं आपके लिए इसे बनाया था, मैंने ऐसे करते रहना है। तो प्रभु तो ऐसा होता है, लेकिन इंसान तो हम अमीर बन गया, हम ऑफिसर बन गया, हम घर बना दिया, तो सब लोग तारीफ तो करेंगे, लेकिन अंदर उन लोग दुख होते हैं। लेकिन प्रभु तो ऐसा नहीं होता। So that is why God is. So we have the power to trust in Him, and we have the power to believe in Him because He never failed in our life. इसलिए हमें सामर्थ्य भी होना चाहिए कि हाँ परमेश्वर मैं पे भरोसा रखता हूँ। Amen. आमीन। And then also let us see the scripture and the testimony of those. See God, and there is very. I was just telling. Just listen. In the book of Daniel chapter 3. पास्टर कह रही है कि एक स्टोरी बता रही है दानियल की किताब 3रा अध्याय। There is a 3 people. उसमें 3 लोग हैं। कौन था? कौन कौन है नाम किसी को पता है? सिस्टर नंदा? हाँ. नवोदेशक
So now the Nebuchadnezzar want them, the three people, to put into fire. जो नबूकदनेस्सर था वो राजा था, उसने बोला था कि 3 लोगों को आग में डाल दो, 3 लोगों Because का they नाम are है। not worshipping the God. क्योंकि वो लोग उसकी आराधना नहीं कर रहे They थे। worship, the Nebuchadnezzar make a statue to worship, to bow down. क्योंकि नबूकदनेस्सर जो था वो बहुत सारी मतलब उसने एक मूर्ति बनाई थी और वो 3 लोग उस मूर्ति के आगे घुटने नहीं टेक रहे थे। सब देश सारे कंट्री में नेबुकदनेस्सर का इमेज को वर्शिप कर रहा था। कि पूरे देश के लोग उसकी मूर्ति के आगे घुटने टेकेंगे। So these three people, और लेकिन वो 3 लोग they fail to worship the idol. लेकिन वो मूर्ति को पूजा करने में असफल रहे, उन्होंने नहीं किया। Because God told them you should not bow down in idol. क्योंकि परमेश्वर ने उन तीनों को बोला कि तुम मूर्ति के आगे घुटने नहीं टेक सकते। So God said that I will protect you, I will secure you, परमेश्वर ने बोला कि मैं तुम्हें बचाऊंगा and I will keep you safe. और मैं तुम्हें बचाऊंगा। So God is always telling you, इसीलिए परमेश्वर आज आप सबको बोल रहे don't हैं, worry, डरो मत। even though you have no money, कि आपके पास अगर पैसे even though नहीं you are है sick, या फिर आप बीमार हो even though you have no friend, या फिर आपके पास कोई दोस्त even though नहीं you है, have people disappointed you, लेकिन लोगों ने आपको निराश भी but किया, I will protect you. लेकिन प्रभु कहता है मैं बचाऊंगा I will तुझे। bless you. मैं तुझे आशीष I will दूंगा, make you great. मैं तुझे महान So बनाऊंगा। when God tell like that, लेकिन जब परमेश्वर हमें ऐसा बोलता God है never fail. वो कभी असफल नहीं होता। So now this अभी से what is that 3 लोग था नाम क्या कौन था? शद्रक मेशक और अबेदनगो। Shadrach, Meshach, Abednego. These 3 people, they are fell to the king. वो जो 3 लोग थे वो राजा के सामने असफल रहे क्योंकि उन्होंने मूर्ति की आराधना नहीं की। So the king become angry. तो जो राजा था उसको गुस्सा आ गया। But God said that I will never leave you. लेकिन उन तीनों को परमेश्वर ने बोला कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा I will not forsake you. और ना मैं तुम्हें कोई भूलूंगा। So I will be with you. मैं तुम्हारे साथ हूँ। That is why these 3 people they put into fire. इसीलिए 3 लोगों को लेकर के आग में डाल दिया So गया। God is not allowed. God is not stop putting into fire. परमेश्वर कभी भी जो आपके जीवन में आग या फिर उस टाइम का जो आग था उसको बंद नहीं किया परमेश्वर। God didn't say that oh these people are my people. I will not allow them to go to fire. परमेश्वर ने कभी नहीं बोला कि ये 3 लोग मेरे लोग हैं और इनको मैं आग में नहीं जाने दूंगा। But लेकिन God allowed them to go to fire. लेकिन परमेश्वर ने ये अलाउ किया कि हाँ तुम तीनों जाओ आप। So they put into fire. और जब उनको आग में डाल दिया गया But God shut the mouth of the fire not to consume. लेकिन परमेश्वर ने आग के मुंह को बंद कर दिया कि उन तीनों को जला न सके। So sometimes Satan will come in your इसी life. तरीके से शैतान भी कई बार हमारी लाइफ में आता है, Sickness will come. बीमारी आती है, God allow परमेश्वर अलाउ because करता of है our sins. क्योंकि हमारे पापों की वजह परेशान से। भी आएंगे और चिंता भी आएंगे, दुख भी आएंगे, पैसा भी नहीं आएंगे। इस चीज में हम भी एक्सपीरियंस करेंगे, लेकिन इस चीज से प्रभु ने हम लोग का लाइफ में मरने के लिए जगह नहीं देंगे। प्रभु ने हम लोग को बचाएंगे। तो प्रभु ने ये शद्रक मेशक अबेदनगो लोग कभी नहीं बचाया फायर से, लेकिन फायर में गया था तो फायर से प्रभु ने उन लोग का फायर ने बर्न करने के लिए फायर को प्रभु ने they are not God not allow them to burn and God परमेश्वर said ने कभी भी ये अलाउ नहीं किया, मतलब उनको आग में तो जाने दिया लेकिन आग को ये अलाउ नहीं किया कि उसको तीनों को जला सके। there is a sometime कलश जो आप लोग का दुश्मन लोग आप लोग का लाइफ कलश में डालेंगे आएंगे, डाल भी है, हम लोग के घर में भी है, लेकिन प्रभु ना मना नहीं करता, प्रभु ना उन लोग का नहीं रोकता, प्रभु ना उन लोग का दरवाजा खोला है ना क्लोज नहीं करता, आएंगे डाल भी है, आप उन लोग का साथ भी रखेंगे, आप उन लोग का साथ भी बैठेंगे, खाएंगे, घर में है, लेकिन प्रभु ना आप लोग को अलाउ नहीं करेंगे आपको हार्म करने के लिए, आपको मरने के लिए। प्रभु ना आपको बचाएंगे, क्योंकि प्रभु बता रहा था मैं आपका साथ, आपका सारी जीवन मैंने बनाया, मैं आपका साथ क्या मैं मौजूद का साथ था, मैं भी आपका साथ हूँ एंड तक, because that word that God never fail, प्रभु वो फेल नहीं करता, प्रभु वादा करते ना और हम लोग का लाइफ में फेल नहीं करता। That is why we should not be worried in this 2024. इसलिए हमें भी 2024 के लिए चिंता नहीं We should not be worried, we should not be tension, ना हमें चिंता करना चाहिए, because God promised us, क्योंकि परमेश्वर आज हमसे वादा I am with you. कि मैं तेरे साथ हूँ। In Psalm 27, भजन संहिता 23 even though your mother father will forsake you, यहाँ तक कि आपके माँ बाप आपको छोड़ देंगे, your father mother is not with you. वो आपके साथ नहीं रहेंगे। से अभी हम लोग का लाइफ में पापा मम्मी हम लोग का साथ नहीं था, लेकिन प्रभु तो हम लोग का साथ 24 आवर होता है। मेरा पापा बहुत दूर है मणिपुर में, कभी कभी हम महीना भी बात नहीं करता, कभी कभी नेटवर्क नहीं और कभी कभी बिजी है, मैं भी बिजी है, फोन आते हैं मैं भी नहीं पिक करता, वो कभी नहीं भी मिला तो, लेकिन प्रभु हम लोग का साथ रोज 24 आवर होते हैं। आप
काला जादू का पास मत जाओ, इसी से आप क्या है आइडल वर्शिप पास मत जाओ। सी कभी कभी हम परेशान होते हैं ना, तो हम सोचते हैं प्रभु हम लोग का सारे, तो कोई इंसान आपको आइडिया देंगे उसका पास आओ, उसका पास जाके प्रार्थना कर, तो हम अचानक से प्रभु को छोड़ के उस चीज में चला जाते हैं, तो हम फेल होते हैं विश्वास। लेकिन हम वापस आते हैं तो प्रभु बेटा बेटी मैंने बताया था मत जाओ, लेकिन मेरा आप भरोसा मेरा पर नहीं था, लेकिन प्रभु आते हैं ना, हम लोग को वेलकम करते हैं और हम लोग को वो आशीष देते हैं और हम लोग को वो शैतान का काम से हटाता है। So that is why if you are trusting completely, then how beautiful we are. तब आप जब देखोगे कि पूरी तरीके से आपका जो विश्वास प्रभु में है ना, चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, तब देखना परमेश्वर कितना महान। So God said that in the time of sickness, problem, trust in me. I will never fail. इसलिए परमेश्वर कहता है कि चाहे तुम्हारे पे बीमारी आए, परेशानी आए, तुम विश्वास रखो, देखो मैं कितने बड़े काम कर सकता हूँ। And then there will be persecution come. चाहे जब सताव आता है, और ये हदेस नगर में ना ये 2 दिन क्रिसमस के बाद सब लोग डर रहा था, सारे लोग पास्टर हम तुम नसास नहीं जाएंगे, और क्या था बजरंग दल बजरंग दल, यस वो लोग आएंगे, और मम्मी लोग भी बढ़ गए। तब क्या मैंने बता रहा था नहीं आएंगे, विश्वास कर लो, प्रभु ना वो लोग का क्या है रास्ता बंद करेंगे। मैं ऐसे बात करता था, और चर्च में भी आया था वो क्रिसमस के दिन एंड टाइम पे, सारे हदेस नगर लड़की लोग मम्मी लोग आया था, सोच रहे हम तो कैसे हो जाएगा। मैंने बताया था चुप शांति बैठो, कुछ नहीं आएगा, वो लोग नहीं आएगा, वो लोग का शक्ति नहीं है, और वो लोग का आपका घर है ना, वो लोग का क्या है पावर नहीं है, आप खरीद के लेके आया तो बताओ, आप लोग ने दिया, वो लोग ने लैंड आपको दिया नहीं दिया, आप बताओ, आपका राय बताओ, कुछ नहीं होगा। मैं ऐसे बता रहा था, तो बाद में तो वो लोग सारे अभी फोन आप नहीं आएगा तो सब लोग बताते पास्टर हाँ आपने सही बता दिया, वो लोग नहीं आएगा। So इतना हम प्रभु हम लोग है ना, प्रभु हम लोग का बताता है चिंता मत कर, हम तो चिंता करते हैं प्रभु ये होने वाला है, ये आने वाला है, ये मरने वाला है, कल क्या करेगा, वो मेरा सो की गया, हम चिंता होते हैं। लेकिन प्रभु बताते हैं नहीं होगा, चिंता मत कर, मैं आपका साथ हूँ, मैं ना आपको जरूरी पूरा करेंगे, मैं आपको संगाई देंगे। लेकिन हम तो सोचते हैं अभी फीवर हो गए, आज दिन मारेगा तो नहीं मारेगा जिंदगी तो हम लोग का क्या है विश्वास तोड़ते हैं। लेकिन प्रभु तो शांति से बैठा कि हम लोग का दिख रहा है ना, गॉड में सी यू, प्रभु हम लोग का शांति के देख के क्या हो रहा है, मैंने इतना मैंने वो कहते ही तो उनका साथ में होगा बैठाया सोया भी, मेरा पास विश्वास नहीं है, मैं क्या कर लूं, विश्वास नहीं है तो जा एक्सपीरियंस कर, सही खाना वो आगे करेंगे तो एक्सपीरियंस हो गया, नहीं हो जाएगा प्रभु ऐसा। So that is why we are let us trust in God. इसलिए हमें प्रभु पे भरोसा रखना चाहिए। Amen. God is good. All right. So this year let us trust God who never fail. इस साल हमें प्रभु पे भरोसा करना है और ना फेल होना, और परमेश्वर कभी वैसे भी So that you will never disappointed in life. तब हम निराश नहीं होंगे, So that you will never cry in life. और ना हम रोएंगे अपने जीवन Even in the best situation, हमारे बुरे परिस्थिति में भी you will smile. आप हंसोगे, Even in the bad wicked place, चाहे बुरी जगह पे, even in the sick bed, चाहे बीमारी की जगह You will पे smile. आप हंसोगे, because God, the healing God, is क्योंकि with us. परमेश्वर जो चंगाई करने वाला परमेश्वर है। Amen. Let us turn to Psalm 65 हम खोलेंगे भजन or संहिता, Psalm 56. भजन संहिता 56, विक्रम पढ़ना Psalm 56 verse 11. भजन संहिता 56 Psalm 56 verse 11. उसका 11वां वचन। Yes, Psalm 56 verse 11. What the Bible said. Let us read together. विक्रम पढ़ना। मैंने परमेश्वर पर भरोसा रखा है, मैं ना डरूंगा, मनुष्य मेरा क्या कर सकता है। See, God said the psalmist said that I put my trust in God and not afraid what man can do unto me. इसीलिए बाइबल बताती है कि मैंने परमेश्वर पर भरोसा रखा और मैं ना डरूंगा कि मनुष्य मेरा क्या कर सकता है। See, man cannot do anything. इसलिए क्योंकि इंसान कुछ कर ही नहीं सकता, Man can disappoint you. केवल वो निराश कर सकता है। See, Satan is a Satan of threatening. वो शैतान ऐसा ही है जो आपको चीटिंग करे, आपको निराश करे। Satan always threatening us. Threatening, you know. Like Satan will say, "Oh, Rohit, आप पास नहीं हो
जाएगा तो हम लोग को दुख होता है। शैतान तो ऐसा होता है, but don't ever say that. I'll be with you and you will be successful, you will be prospered. So Satan he can't do nothing, but he is showing very strong thing. Then we used to be afraid. ऐसे है ना, ड्रंकर लोग ऐसा होते हैं। ड्रंकर लोग कुछ नहीं होता, लेकिन वो लोग का जबान है ना बहुत खतरनाक है। लेकिन ड्रंकर होते हैं तो ना मेरे को मारेंगे, ये चिल्लाएंगे, बुलाएंगे। लेकिन आप ड्रंकर है ना, वो का साथ भी जाके उंगली से भी इसे कर लो। लेकिन उनका जबान तो इतना खतरनाक है, तो हम लगते हैं ओह मेरे को इससे बात कर दिया, इससे बात कर दिया। शैतान तो ऐसे ड्रंकर जैसा है। शैतान तो आपको ऐसे करेंगे, मैं आपको खाएंगे, पैसा नहीं आएंगे, जॉब नहीं मिलेंगे, ऐसे ऐसे हम तो सुन के डर जाते हैं। लेकिन हम शैतान निकल, आप कैसे भी he was just full. So that is why, but we should trust in God. लेकिन हमें परमेश्वर पे भरोसा रखना है। So what man can do for us? शैतान इंसान क्या कर सकता है? That is what the Bible says. I trust in God. इसीलिए बाइबल बताती है कि मैं परमेश्वर पे भरोसा Because रखता man हूँ, cannot do anything for क्योंकि इंसान me. कुछ कर ही नहीं सकता मेरे लिए। That is what Psalmist David said. इसीलिए दाऊद ने ये भजन लिखा और He दाऊद said कहता है- that I put my trust in God. इसीलिए दाऊद कहता है कि मैं अपना भरोसा परमेश्वर पे I will रखूंगा not be afraid. और ना मैं डरूंगा। What man can do? और इंसान में क्या कर सकता है? Because David lied. क्योंकि दाऊद के जीवन में भी So many enemies. बहुत सारे दुश्मन थे। He is the king. वो राजा था। So many kingdoms tried to kill David. बहुत सारे राज्य के लोग दाऊद को मारना चाहते थे। And even in his own house, उसके खुद के घर में भी his son उसके बेटे Absalom जो असलोम था want to take the position of the उसकी father. जगह लेना चाहता था दाऊद, And he want to kill his own father. और वो अपने पिता को जो दाऊद था उसको मारना चाहता था। His own son Absalom want to kill David and his father, and he want to take the position. When David was old. जो दाऊद जब बूढ़ा था तो उसके खुद के बेटा ने उसको मारने की कोशिश की ताकि मैं अपने पापा की जगह राज्य गद्दी पर And Absalom doesn't want that David should give Solomon to be the king. क्योंकि जो असलोम बेटा था वो कभी नहीं चाहता था कि सुलेमान को वो राजगद्दी मिले। When you read First King, Second King, and Chronicle, you see that how the David house so many problems. जब आप देखोगे कि जो फर्स्ट राजा सेकंड है और जब हम इतिहास की किताब पढ़ेंगे तो उसमें सारी चीजें दी गई है। You read Chronicle. आप वो इतिहास की किताब पढ़े। So David has Absalom want to become a king. David want to be next king Solomon. जो इसलिए क्योंकि जो क्या नाम था पास्टर? Solomon. सलोमन जो था, So his brother is Absalom. उसका जो भाई था वो असलोम था। So he don't want his younger brother Solomon to be the king. ताकि वो नहीं चाहता था कि जो मेरा बड़ा भाई है वो राजा So when the father is a king, जब पिता वो राजा था he make another people another state. ताकि वो दूसरे राज्य के लिए, For example, David is sitting in Delhi, जैसे दाऊद जो है वो दिल्ली में है and then his son go to Manipur. और उसका जो बेटा है वो मणिपुर में राज्य He करेगा make himself a king, और वो अपने आप को राजा समझेगा and he against the father. और वो अपने पिता के खिलाफ And जाएगा he don't want his son Solomon to his brother Solomon to be the king. और वो कभी नहीं चाहेगा जो सोलोमन है वो कभी भी राजगद्दी पर बैठो So राजा। Absalom want to kill Solomon. Absalom want to kill his father. इसलिए जो अशलोम था वो चाहता था कि राजा जो दाऊद था उसको मारने के लिए। Even the when David become anointed to be a king. जब उसको सुलेमान को जब No, David was anointed to be a king in the शुरू में भी. जब शुरू में भी जब दाऊद का अभिषेक किया गया था राजा बनने के लिए, When Samuel come and anoint David, जब शमूएल आया उसको अभिषेक करने के लिए, then that time there is a king, तब भी एक राजा था Saul. शाऊल। Saul is not the Paul, okay? In the Old Testament, the king Saul. जो शाऊल था वो जो हमारा जो पौलुस है वो नहीं, वो पुराने नियम का एक शाऊल राजा था। That's a read Bible. You इसीलिए know हमें what बाइबल I'm talking पढ़ना about. चाहिए ताकि जो हम पढ़ते हैं पास्टर प्रीच करते हो हमें समझ में आए। So now Saul was a king. जो शाऊल राजा था Saul was the first king in Israel. वो इजराइल का पहला राजा था। So when he was a king, जब हम राजा बनते he didn't obey God. परमेश्वर की नहीं सुनता। So God told to Samuel, इसीलिए शमूएल को परमेश्वर ने go बोला and appoint again another king. उसकी जगह किसी और को नियुक्त कर, Because Saul didn't obey me. क्योंकि शाऊल मेरा नहीं सुनता है। So now David told Samuel, God told them that Samuel go to Jesse's house and he anointed David to be the king. इसीलिए शाऊल जो शमूएल था उसको परमेश्वर ने बोला
and anoint David. और जब वो आया और दाऊद को अभिषेक किया, Then now Saul come to know, तब शाऊल को पता लगा I am a king. कि मैं राजा हूँ, Why anointed another king? जो मेरी जगह दूसरे को अभिषेक किया गया। So he ran after David to kill. तब वो दाऊद के पीछे लगा कि उसको मैं मार दूं। And then David never stay home. लेकिन कभी दाऊद अपने घर में नहीं David रहता। used to hide in the rock, in the mountain, in the jungle. वो जंगल में पहाड़ों पे जाकर के That's why when you read what is that book of Psalm, इसलिए जब हम भजन संहिता पढ़ते the हैं Lord is my hiding place, कि परमेश्वर मेरा छुपने का the जगह Lord is my है, refuge. परमेश्वर मेरा बचाने वाला है। Even though I walk through the valley of shadow of death, चाहे मैं मौत की परछाई में भी होकर चलूंगा but तब भी मुझे God's hope बचाएगा, has stopped to cover me. क्योंकि परमेश्वर तब भी मेरे साथ रहेगा मुझे बचाने So के that's लिए। why he wrote the Psalm 23. इसीलिए 2023 से भजन संहिता He लिखा go गया। through death. चाहे मैं मौत की घाटियों से He भी go मैं through गुजरूंगा, problem. चाहे मैं परेशानी He में go भी through जाऊं, attack. चाहे मैं मेरे पे बहुत सारे He attacks go भी through हो, so many problems. बहुत सारे प्रॉब्लम्स भी आ जाए, But God always protects him. लेकिन परमेश्वर मेरी सुरक्षा That is करेगा। why this Psalm 56. इसीलिए हम देखते हैं कि भजन संहिता 56 में भी I trust in God कि मैं अपना भरोसा परमेश्वर में because रखूंगा, God never क्योंकि fails. वो कभी असफल God नहीं होता। protection always with me. उसकी सुरक्षा हमेशा God मेरे always साथ provide है। for me. वो हमेशा मुझे उपलब्ध God कराता always है। save my life. वो मेरे जीवन को God बचाता है। always whatever I want He provide for जो me. भी मुझे चाहिए परमेश्वर मुझे देता है। That's why He said, what man can do for me? इसलिए इंसान हमारा कुछ नहीं कर Man सकता। cannot do anything. इंसान कुछ नहीं कर सकता। That is why election time में सारे वादा करते हैं मैं इस देश के लिए दिल्ली के लिए करेगा वो करेगा ये करेगा सब लोग विश्वास करके वोटिंग देते हैं वोट खत्म वो का बच्चा भी खत्म एक भी पूरा नहीं करता David said that what can I do man cannot do anything इसीलिए दाऊद कहता है कि मैं इंसानों से क्यों डरूं, क्योंकि so वो तो man कर नहीं always सकते। fail क्योंकि इंसान हमेशा असफल ही होते but हैं, God never fail लेकिन परमेश्वर कभी असफल that's नहीं why होता। David said I trust in God इसीलिए दाऊद कहता है कि मैं अपना भरोसा Because परमेश्वर God पे never रखूंगा, fail. क्योंकि वो कभी असफल नहीं होता all the days of my life मेरे जीवन के हर दिन में। Amen आमीन। then let us read also Proverbs हम पढ़ते हैं नीति वचन, मनीष आप पढ़ना Proverbs 18 verse 24 नीति वचन 18 का 24। Proverbs 18 verse 24 I will read first in English Proverbs 18 verse 24 God never fail him a friend that stick closer than a brother Amen 787 पेज नंबर। पढ़ना मनीष नीति वचन 18 का 24 मित्रों के बढ़ने से तो नाश होता है परंतु ऐसा मित्र होता है जो कोई भाई से भी अधिक मिला रहता है Amen see the English Bible say God never fail इसलिए इंग्लिश बाइबल बताती है कि परमेश्वर कभी असफल in नहीं होता। him as a friend stick closer than a brother जैसे कोई मित्र अपने ज्यादा भाइयों के करीब जाता है। see now what is that Manish and Nambin or what is Rohit and Aryan जैसे कि मनीष भैया है और नवीन है, रोहित They भैया और stick आर्यन closer है, to one और वो एक दूसरे का आपस में एकदम संबंध रखते but the हैं। English Bible say I am more than that लेकिन इंग्लिश बाइबल बताती है कि मैं उनसे भी बड़ा हूँ। whether the brothers stick together चाहे जो भाई एक साथ रहते sister हैं, sisters stick together चाहे वो बहनें एक साथ रहती है, more than that उन सब चीजों से ज्यादा I am more closer मैं तेरे साथ हूँ। our brothers sometimes fail बहुत बार हमारे भाई Our असफल होते sisters हैं, sometimes fail. हमारी बहनें असफल हो जाती है, or sometimes even our brother sister disappointed कई बार हमारे भाई बहन भी हमें निराश करते they हैं, are sitting वो हमें धोखा देते they हैं, are disappointed हमें निराश करते they are हैं, jealous वो हमें हमसे जलन रखते हैं। आपका मम्मी पापा ना कुछ देते हैं ना तो हम लोग को ओन ब्रदर भाई भी हम लोग को जलन होता है लेकिन प्रभु बता रहे थे मैं तो ऐसा वाला नहीं हूँ आपका भाई से भी आपका सिस्टर से भी मैं आपको बहुत क्लोजर हूँ so that is why he never fell so that God is our God वो परमेश्वर हमारा परमेश्वर। Amen and then प्रीति पढ़ना Psalm 46 verse 1 भजन संहिता 46 का 1। Psalm 46 verse 1 Psalm 46 verse 1 I will read in English he then very present help in times of need Psalm 46 परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है, संकट में मैं अति सहज से मिलने वाला सहायक। and then also Psalm 50 Sister Kanta पढ़ना Psalm 50 verse 15 भजन संहिता 50 का 15। Psalm 50 verse 15 in English Bible says Psalm 46 verse 46 verse 1 he that very present help in times of need God always help us in the times of you are needed
परमेश्वर हमेशा हमारी मदद करता है जब हमारी जरूरत होती है तब भी। And in times of trouble, God always helps us. चाहे परेशानियों में भी हमारी वो मदद करता है। Psalm 50 verse 15. हाँ, भजन संहिता 50 का 15। और संकट के दिनों में मुझे पुकार, मैं तुझको छुड़ाऊंगा और तेरी महिमा के करने पाएगा। Amen. See, God said that in the times of we need, God always help us. फिर जब हमें परमेश्वर की जरूरत होती है, And in the times of you problem, जब हम परेशानी में होते हैं, call unto me, कि मेरे नाम को पुकार, I will come, और मैं आऊंगा, and I will deliver you और from मैं trouble. तुझे छुटकारा दूंगा उन सब चीजों से। So God is like that. परमेश्वर ऐसा है, This is His promise. ये उसका वादा है। That is why इसलिए whenever we have problem, जब हमारे पास प्रॉब्लम आता है, when we call upon Him, जब हम उसके नाम को पुकारते हैं, He save us. और वो हमें बचाता है। When you are in trouble, जब हम परेशानियों में होते हैं, sickness, बीमारी में, failure, असफलता बहुत में, कष्टीज में, बहुत सारी तो चीजों हम प्रभु को बुलाता है, तो हम प्रभु हम लोग के पास आके हम लोग को बचाता है, क्योंकि उन्होंने वादा दिया था, वचन दिया था। That is why God never fail. And all the days of your life. हमारे जीवन के हर एक दिन में वो महान है और वो कभी फेल नहीं होता। So दुनिया में ऐसा आपका लाइफ में ऐसे सोचता हूँ, प्रभु हम लोग का हेल्प नहीं करता, ट्रबल में हम लोग का हेल्प नहीं करता, प्रभु हम लोग का बच्चा नहीं क्या है सुरक्षा नहीं करता। आप लोग का लाइफ ऐसे फील हो रहा है? नहीं होता ना। कोई ट्रबल भी हो, हम प्रभु में ऐसे रोते, तो हम लोग अचानक से प्रॉब्लम को सॉल्व होते हैं, हम लोग को अचानक से प्रभु आके हेल्प करते हैं। That is why प्रभु से मैं आपको फेल नहीं करेंगे, मैं आपको डिसअपॉइंट नहीं करेंगे, क्योंकि प्रभु ही वादा कर दिया हम लोग को। इसके लिए वो का वचन, प्रभु का वचन हम लोग का लाइफ में फेल नहीं होगा। That's why we should always nothing to be afraid इसलिए हमें कभी भी किसी चीज से डरना नहीं in चाहिए 2024. इस 2024। And I believe that मेरा विश्वास भी है 2024 में हिंदी पक्का प्रीचिंग करूंगा। Amen. 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 So that is the things. But प्रभु ने अभी तक मौका दिया, क्योंकि प्रभु मालूम है आप लोग भी इंग्लिश भी जरूरी है, इंग्लिश मालूम करना भी जरूरी है, इसके लिए मेरा भी हिंदी भी जरूरी है, आप लोग भी इंग्लिश जरूरी है। इसके लिए प्रभु अभी तक मेरे को मौका नहीं दिया, तो देंगे तो इंग्लिश खत्म हो जाएगा। So that is why, and then also I thank God that God is bringing these people also improving. इसलिए परमेश्वर कह रहे हैं कि मैं धन्यवाद, और पास्टर कह रहे हैं कि मैं धन्यवाद देती हूँ कि परमेश्वर इन लोगों के अंदर भी बहुत बोलो हम लोग के चर्च में इंग्लिश इंप्रूव कर दिया, बहुत कृति भी हो, सिस्टर सुरेखा भी हो, और सिस्टर कंदा भी हो, and these people in the beginning they do not even how to translate. शुरू में मुझे भी नहीं पता था कुछ, Even last year तक, हाँ लास्ट ईयर तक भी मुझे कुछ नहीं आता था। see how God is still you know that is why God bring us together. इसीलिए परमेश्वर हमें एक साथ लेकर आते हैं। That's why God say, you know, I will help you इसीलिए प्रभु कहता है कि मैं तेरी मदद करूंगा in the times of your need. जब तुझे जरूरत होगी। And then also God never fail. और परमेश्वर को भी असफल नहीं होता। He is always true, and whatever He say He never fail. जो उसने कहा है वो करने को कभी असफल So नहीं last chapter we read, हम लास्ट चैप्टर पढ़ेंगे heaven and earth will pass away, but God's word will remain forever. कि स्वर्ग और धरती तो टल जाएगी लेकिन परमेश्वर का वचन कभी नहीं Matthew 24 verse 35. मत्ती 24 का 25। Matthew 24 verse 5. 35. Matthew 24 verse 35. मत्ती 24 का 25। The Bible says, heaven and earth will pass away, God's word remain forever. God's word power to save in you, for He never fail. He is all powerful and eternal God, glory and maker, rulers of heaven and earth. Trust in Him. God never failed. Amen. हम पढ़ते हैं 24 और इसका 25वां वचन। देखो मैंने पहले से तुमसे यह सब कुछ कह दिया है, इसलिए यदि वह तुमसे कहे देखो वह जंगल में है तो पास्टर 35 ना 35 उस दिन और आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे परंतु मेरी बातें कभी न टलेगी। आमीन। So that means, what does that mean? इसका मतलब क्या है? God said that I will not leave you. कि परमेश्वर कहता है मैं I तुम्हें will नहीं help छोड़ूंगा you. कभी, मैं तुम्हारी I will मदद करूंगा, provide for you. मैं तुम्हें दूंगा, I will heal you. मैं तुम्हारी I will चिंता deliver you. करूंगा, मैं तुम्हें छुटकारा I will दूंगा, protect you. मैं तुम्हारी सुरक्षा करूंगा। So this is the promise of ये God. परमेश्वर का वादा है। From Genesis to ये Revelation. उत्पत्ति से लेकर के प्रकाशित वादा। So today He also promised us again. इसलिए परमेश्वर आज दोबारा हमसे ये वादा Heaven करता है and earth will pass कि away. स्वर्ग और पृथ्वी टल But जाएंगी, what I have promised in लेकिन जो you, मैंने तुमसे वादा किया what है, I have given to the जो Word of मैंने God, तुम्हें वचन दिया है, the Word of God will
is saying, कि परमेश्वर कह रहा है whatever He say to us, कि जो कुछ वो हमसे कह रहा है He will never fail. वो कभी असफल नहीं Even the होगा। heaven will go away, इसका चाहे वो स्वर्ग पे टल जाए, even the earth will go away. चाहे पृथ्वी टल जाए, But what promise in you, लेकिन जो उसने हमसे वादा किया है He will surely fulfill. वो पूरा निश्चय करेगा। That is the meaning of this ये verse. इसका मतलब है। That means God never fails. इसका मतलब परमेश्वर कभी असफल नहीं Even होता। this earth will go away. चाहे ये धरती भी टल Samudra जाएगी, will go away. सन भी और Sun समुद्र भी also चला go जाएगा, away. सन भी खत्म हो People जाएगा, also go away. लोग चले जाएंगे, But the वचन प्रभु ने हम लोग का वादा करा था वो नहीं जाएंगे, जरूरी फुलफिल करेंगे. So that is the promise of this verse. यही परमेश्वर का इस वचन के द्वारा हमसे So वादा है। this इस 2024, 2024 में let us trust in कि God हम उस पर भरोसा because रखें, God never fails. क्योंकि परमेश्वर कभी असफल नहीं He होता। is the God of faithful. वो विश्वास योग्य परमेश्वर है। Whatever He said,